Words. Now, I would like to invite Professor G.S. Vajpayee, sir, for a special address. Professor G.S. Vajpayee, Vice Chancellor of the National Law University, Delhi. A round of applause for Professor G.S. Vajpayee, sir. Namaskar, Honorable Justice J.K. Maheshwari ji, learned Attorney General of India, Sri Venkatramani ji, my friend Professor Surya Prakash ji, and a special mention to two persons, Mr. Pradeep Rai ji and Madam Rashri ji, for your splendid effort. It's very unusual to see that a program of this scale is being organized outside of the educational institution. And I must say that in all your program, there is a very important message and a very important communication. And through this program, you have actually made us to think about so many things which are so crucial as far as the education is concerned. I know, dear friends, you have been listening since morning. And I will not make it very heavy, and rather I will make it very simple to you. Since we are talking about legal education, then we must look at that what should be our current priorities in this case. My friend Surya Prakash has very clearly, put his message, and he put the onus on the, Bar Council of India role, and so it was a very critical remark, और वो मुझे लग रहा है जिसके पास पहुंचना चाहिए था वो पहुंच गया. मैं दो लाइन जरूर कहूँगा कि रात को रात कह दिया तुमने, अब इतना सच कौन बोलता है. So it was very well communicated. I will also not speak very long, because see, we keep speaking in so many forum and fora and always about legal education. और मुझे कहीं मैं पढ़ रहा था कि आखिर में बुद्ध भी चुप हो गए थे. गौतम बुद्ध आखिर में चुप हो गए थे. उन्होंने पूरी जिंदगी बोला, उन्हें इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता. I am of the considered view that whatever was possible on the count of legal education has already been said. Professor, if you start from Professor Menon and his ideas we were discussing, and the kind of revolution he brought in the field of legal education. Now this is the time to really revisit certain things and take a determined action. My brief message is confined to this young generation who is sitting here. 5 small things I'll communicate to you in just 2-3 minutes. One is, I am not for all those institutions which in any manner try to hinder the process of free thinking, a very autonomous thinking, and a very liberal thinking in the field of education. If education is not liberalized properly within the campuses of the university, you are killing the spirit this young generation is capable of nurturing and incubating. This is extremely important. So I first thing that I wish to tell you, that try to incubate those ideas. Ideas are very important, and ideas are not allowed to flourish for want of various kinds of limitations which are put up by the system on account of so many things. Educational institutions should be the liberal spaces where knowledge is allowed to be germinated in a most spontaneous way. ये बहुत important. तो अगर आपके माइंड में कोई नया आइडिया आता है जो फिट नहीं हो रहा कहीं, वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. हर यूनिवर्सिटी को एक आइडिया बैंक खोलना चाहिए, उसमें सारे आइडियाज को आने दो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आइडिया होती है. आप देखें जितने इन्वेंशन, जितनी नई चीजें दुनिया में आई हैं, उन सब के पहले एक आइडिया था. हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ने कुछ इस तरह की परंपरा बना दी कि वी आर नॉट अलाउइंग द आइडियाज टू बी फ्लोरिश्ड एंड टू बी इंक्यूबेटेड एंड टू बी नर्चर्ड टू गिव इफेक्ट. तो यंग जनरेशन ये बहुत ऐसा सोचने, मैं चूंकि 30 साल से एजुकेशन कैंपस में, मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं, वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आप शायद सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या कह रहा, लेकिन वो बात चूंकि कल आने वाली है,
जो बात आज की बात आज आपसे कही जा रही है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, उसको सब लोग, लेकिन वो बात 10 साल बाद वाली कर रहा है। लेकिन 10 साल बाद वाली आने वाली बात को समझने के लिए जो लोग वहां बैठे हैं उनके पास ये विजन है या नहीं, ये बड़ा भारी क्राइसिस। तो मैं ये समझता हूं कि बच्चों को की जो ये यंग जनरेशन की जो थिंकिंग है इसको थोड़ा अलाउ करें। और मैंने बहुत से आइडियाज पे काम किया है, मैं टाइम नहीं मेरे पास, मैंने बहुत से चेंजेस सिस्टम में सिर्फ स्टूडेंट्स को सुन के किए हुए हैं। उनको मेटलाइज करना मेरा काम है, किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करें। जैसे मैं भी एक लाइन में बता दूं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली बिकम द ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री जिसने एक नो डिटेंशन पॉलिसी लगा दी है। 5 साल का कोर्स होता है, आपको कहीं नहीं रोका जाएगा बीच में। क्यों फेल हो आप एग्जाम देने आए, 7 साल का टाइम आपको बीसीआई देती है, आपको तीसरे सेमेस्टर में चौथे सेमेस्टर में फेल हो गए, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, उसको एज ए पॉलिसी, और इसको अब कहा जा रहा है कि इसको दूसरी यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं इनोवेशन, दूसरी चीज है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर लीगल एजुकेशन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं कर पा रही है तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा नया क्या है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस देश में जहां लीगल सॉल्यूशंस की डिमांड है, उनको सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसेस के पास क्या आइडिया है, क्या वो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिससे ये चीजें सॉल्व हो। ये जमाना लीगल टेक का है। माय थर्ड थिंग, लीगल टेक को आप जरूर डेवलप करवाइए, कुछ भी कीजिए। आपने सुना होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में मैंने एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फाउंडेशन बना दिया, जो सेक्शन 8 कंपनी। मैं उसमें जितनी टेक्नोलॉजी में जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी जो सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे वो ट्राइब्यूनल का वर्क हो, कोर्ट का वर्क हो, पुलिस का वर्क हो, फाइलिंग का काम हो, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग हो, इसके लीगल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसकी कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं सिस्टम को। मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी शुड बिकम रेलेवेंट टू द गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दोज सॉल्यूशंस विच आर ट्रांसफॉर्मिंग। एजुकेशन अगर ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही, चेंज नहीं कर रही है, तो फिर वो कुछ नहीं कर रही है। तो कहानियां नहीं चाहिए, इस समय एक्शन चाहिए। ये जनरेशन कैपेबल है, पुरानी जनरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। माय होप्स आर पिन्ड ऑन यू, और आपको शायद खुद पता नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है कि वो आपको ये बताए। तो लीगल टेक पे आप काम कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कीजिए। आप लास्ट चीज जो है वो रिसर्च पे काम कीजिए। आप रिसर्च क्या कर रहे हैं? मैं ऐसी रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं जो रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल हो। आप नई कोई रिसर्च करके, आप समय नहीं मेरे पास, मैं बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग होती हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रयोग किए हैं जो स्मॉल माइक्रो लेवल रिसर्च करके दिखाई है, जिसने सिस्टम को इम्पैक्ट किया है। इम्पैक्ट स्टडी की ज़रूरत है। अभी नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, इसकी इम्पैक्ट स्टडी की ज़रूरत है कि किस तरह काम कर रहा है, क्या मॉडरेशंस आ रहे हैं इसमें। तो इस तरह की आप एक थिंकिंग डेवलप कीजिए। ये हो सकता है आपके टीचर कई बार आपको नहीं बताते हो, आप खुद सोचना शुरू कीजिए। आप थोड़े ऑटोनॉमस बनिए। मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर और टीचिंग को हमने ऐसा बना दिया कि आप रिसीवर हैं, सिर्फ आप रिसीवर नहीं हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव एजेंट हैं। तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे आप काम कीजिए। वो 2 चीजें मैं और कहना चाह रहा हूं, समय की सीमाएं हैं। आफ्टर ऑल हम ये 2 चीजें चाहते कि रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एजुकेशन अल्टीमेटली शुड प्रिपेयर। अगर आप आज के दौर में देखें, द यंग जनरेशन इज पासिंग थ्रू a very difficult social media influence which is spoiling the generation like anything. You need to properly conserve your energy to be able to really respond to those issues which are bothering the country now. आपके सामने चैलेंज वो जो हम लोगों के सामने नहीं था। हमारे पास तो दूरदर्शन था, आपके पास इतनी लंबी चॉइस है। यू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस। जब ऑप्शंस बहुत होते हैं तो बड़ी मुसीबत होती है। और आखिरी चीज मैं बताऊं कि जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते तो आप क्या अचीव चाहते। अभी थोड़े दिन पहले मार्च 20 वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता ना, इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, 118 नंबर पे है 145 कंट्री में इंडिया। गवर्नेंस इज फेलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। गवर्नेंस, मैंने एक आर्टिकल लिखा था लॉ एंड हैप्पीनेस। आप सोच के देखिए ये
कि किस तरह से आम आदमी के चेहरे पे आप अपने काम से मुस्कुराहट ला सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर का जो एक कंसर्न सोशल ह्यूमन बीइंग है। लॉ तो आप पढ़ लेंगे, वो तो आपका पढ़ाते हैं, हम लोग सब करते हैं, टेक्निकली हर तरह से, मैकेनिकली, और आपको 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, इट्स इनफ। बट आपको एक अपने कोर वैल्यू सिस्टम को इंटैक्ट करते हुए आपको लार्जर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी तरफ आपको देखना ज़रूरी है। और हर आदमी को अपनी इकिगाई सर्च करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हर आदमी को वो पर्पस जरूर फॉलो करना है। तो मैं समझता हूं कि आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें और अपना एक अलग एक्शन प्लान बनाएं। आप अपने 5 साल में क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। तो लीगल एजुकेशन तो स्टैटिक है। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं डायनामिक लीगल एजुकेशन। डायनामिक तो आप हैं, आप डायनामिक है। एजुकेशन तो सब किताबें हैं। आप इतना स्पेस है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। थैंकफुली यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी इनेबलिंग है कर रही। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, अगले 5 साल में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है सब आउटडेटेड होने वाले हैं। अगर आपने एआई और इस तरह के टूल्स को तुरंत आपने तैयारी नहीं की, यू आस्क योर यूनिवर्सिटीज टू इनेबल यू टू वर्क विद टेक्नोलॉजी। और एआई के सॉल्यूशंस इतने वाइटल होने वाले हैं कि मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूँ। आई एम फ्लोटिंग ए वर्कशॉप, आपको अगर ज्वाइन करना करिए, जिसमें हम कम से कम 25 टूल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो लीगल एजुकेशन और प्रोफेशन में काम आएंगे। इस तरह की स्किल सेट आपके पास होना चाहिए जो आपको कल के लिए तैयार करे। दुनिया भर में जो लॉ स्कूल हैं वो यही काम कर रहे हैं, हम कुछ और कामों में लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने आपको एक्सहॉर्ट किया है, लेकिन ये बातें, मैं किताबों का आज मौका नहीं था, मैं दूसरी चीज़ें कभी भी बोल दूंगा, लेकिन ये कुछ बातें जो मैंने कही अगर आप ध्यान रखेंगे और परस्यू करेंगे तो अच्छा है। और आपको किसी भी तरह से कोई सवाल मुझसे पूछने की कभी भी ज़रूरत हो बियॉन्ड दिस प्रोग्राम, यू आर ऑल वेलकम। थैंक यू, हैव ए गुड डे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर GS वाजपेयी जी। अब मैं आग्रह